کا معاملہ ہے اس کا حکم الگ ہوتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے تم بہترین امت ہو۔ اگر صرف بھلائی کا حکم دینے سے کام چل جاتا تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم برائی سے لوگوں کو روکو۔ اور ایک جگہ نہیں، جہاں بھی کہیں بھی آیا ہے اس طرح کے حکم تو وہاں پر دونوں کا حکم آیا ہے۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے قرابت داروں سے بہترین سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہاں پر 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 چیزوں سے روکا بھی ہے۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور تمہیں روکا جاتا ہے برائی سے، بے حیائی سے، فحشہ سے، بغاوت سے۔ حضرت لقمان نے اپنے لڑکے کو نصیحت کی، وہ قرآن شریف میں آیا ہوا ہے، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے میرے لڑکے نماز کی پابندی کرو اور اچھے باتوں کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اللہ رب ذوالجلال نے جب مومنین کا تعارف کروایا تو ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد ہو یا مومن عورتیں ہوں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وہ مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں ہوں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وہ دوست کیوں ہیں؟ کہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اگر برائی سے روکنے کا حکم نہ دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ صرف یہ فرماتا کہ تمہیں اچھائی کا حکم دیا جاتا ہے، برائی تو خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اور پھر جہاں پر منافقوں کا ذکر فرمایا ہے، اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، والمنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض تأمرون بالمنکر وتنہون عن المعروف۔ اور منافقوں کی عادت یہ ہے کہ منافق مرد ہو یا منافق عورتیں ہوں، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ منافق وہ ہوتا ہے جو اچھائی باتوں سے روکتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو اچھائی سے روکتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک اسی ضمن میں ایک آتی ہے، کیف انتم اذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو لوگ اچھائی کا حکم نہیں دیں گے اور برائی سے لوگوں کو نہیں روکیں گے۔ صحابہ کرام چونکہ وہ زمانہ ہی ایسا تھا کہ جو اسلام کے سانچے میں مکمل ڈھلے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی زمانہ آنے والا ہے؟ اچنبھے میں پڑ جاتے ہیں، تعجب میں پڑ جاتے ہیں، ارشاد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ایسا بھی زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ اچھائی کا حکم نہیں دیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے؟ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اشد من ذلک فسیکون۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تم ابھی اسی گمان میں ہو کہ لوگ اچھائی کا حکم نہیں دیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے، اس سے زیادہ خطرناک حالات پیدا ہونے والے ہیں، اس سے زیادہ خطرناک حالات اور زمانہ آنے والا ہے کہ اچھائی کا حکم دینا تو دور کی بات ہے، برائی سے روکنا تو دور کی بات ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ لوگ اچھائی کو روکیں گے اور برائی کا حکم دیں گے، اچھائی سے روکیں گے اور برائی کا حکم دیں گے، یہ زمانہ بھی آنے والا ہے۔ آج کیا وہ زمانہ نہیں ہے؟ آپ اپنے معاشرے میں اس کو کیا نہیں دیکھتے ہیں؟ آج اگر کوئی نوجوان اگر داڑھی رکھ لے تو اس کے عزیز و اقارب، اس کے رشتہ دار، اس کے گھر والے، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن اس کا جینا تو بھر کر دیتے ہیں۔ تو ملا بن رہا ہے، تو مولوی بن رہا ہے، کیا ابھی یہ داڑھی رکھنے کی عمر ہے؟ اس کو اتنا تانا دیتے ہیں کہ پھر وہ بیچارہ مجبور ہو کر کے داڑھی منڈانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کیا اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا تھا کیا یہ صادق نہیں آ رہا ہے؟
मॉडर्न किस्म के लोग अपने बच्चों को, नौजवानों को दाढ़ी नहीं रखने देते हैं। अगर वो रखना भी चाहे, उनके दिल में जज्बा भी पैदा हो तो उसको मजबूर कर देते हैं, और इतना मजबूर करते हैं कि मजबूरन वो दाढ़ी मुड़ाने पर मजबूर हो जाता है। कोई नमाज शुरू करके देखे नौजवान, उसके दोस्त अहबाब लौंडे लफाड़े लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, ये चला है नमाज पढ़ने के लिए, ये देखो चला है नमाज पढ़ने के लिए, तरह तरह के फप्तियां कसते हैं, ताना जनी करते हैं, और नमाज का वक्त वो मस्जिद की तरफ आने के लिए तैयार होता है तो उसे दूसरे तरफ लोग ले जाते हैं। अरे चलो घूम करके आते हैं, चलो चाय पी करके आते हैं। उसी में बुराई को हुक्म दे रहे हैं और अच्छाई से लोगों को रोक रहे हैं। दाढ़ी रखना इतना ऐब शुमार किया जाता है, हम कौम में, मुस्लिम में इतना ऐब शुमार किया जाता है कि कोई आदमी अगर दाढ़ी रख ले, और इंसान है, कहीं अगर किसी से थोड़ी सी चूक हो जाए, अगर वो दाढ़ी रखा है तो फौरन ये बोलते हैं कि ये दाढ़ी रखा है, शर्म नहीं आती है। ऐसी काम करते हुए भाई गलती किसी से हो सकती है, उसमें दाढ़ी का क्या कसूर है, उसमें दाढ़ी का क्या ताल्लुक है। बेवकूफ समझते हैं दाढ़ी रखने वालों को, मुल्ला कह करके पुकारते हैं दाढ़ी रखने वालों को। ये हैं हमारे हालात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि इतना सख्त जमाना आने वाला है कि तुम भलाई का हुक्म देना तो दूर की बात है, भलाई से रोकोगे, और जो बेहयाई और बेगैरती है उसका तुम हुक्म दोगे, उसका प्रचार करोगे। आज वो ज़माना आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज अगर कोई कुरान पढ़ना शुरू कर दे जो नहीं जानता है, हज़ारों लोग नहीं जानते हैं, 90-95% लोग कुरान शरीफ पढ़ना नहीं जानते हैं, लेकिन उसे तौफीक नहीं होती है कि कम से कम हम अपनी उतनी आयतें तो दुरुस्त कर लें कि जिससे हमारी नमाज दुरुस्त हो जाए। और अगर कोई खुदा न खास्ता अल्लाह किसी को तौफीक दे, अगर वो पढ़ना भी चाहता है तो उसे इतना ताना जनी करते हैं कि वो कुरान पढ़ने की तरफ फिर दोबारा रग़बत नहीं करता। लोग कहते हैं ये देखो पढ़ने जा रहा है, ये देखो मौलाना बनने जा रहा है, ये देखो हाफिज बनने जा रहा है। जब पढ़ने का उम्र था खत्म हो गया, अब चला है ये मौलवी बनने के लिए। उसको इतना डांट और इतना ताना जनी करते हैं कि वो मजबूर होकर के कुरान पढ़ना छोड़ देता है। ये किसका काम है? शैतान का काम है, जो पढ़ाई से और अच्छे कामों से रोकता है। और अल्लाह रब्बुल जलाल खुद इरशाद फरमा रहा है कि मुनाफिक की निशानी यही है कि वो भलाई को रोकता है और बुराई का हुक्म देता है, और मोमिन की निशानी यही है कि वो अच्छाई का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है। इसी तनाजुर में हम अपने आप को तौल लें कि किस तरह हम बुराई को फरोग दे रहे हैं, बुराई को उजागर कर रहे हैं, बुराई को फैलाने में हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, कितना लगे हुए हैं, लाग और जतन से कर रहे हैं, और भलाई को फैलाने में और बुराई को रोकने में हमारी कोई कोशिश नहीं है। अभी धुरवामूर में क्रिकेट का मैच हुआ है, मस्जिदें खाली हो गई, 5-7 आदमी रहते थे जमात में। ये बुराई को फरोग नहीं देना है तो क्या है? अच्छे अच्छे लोग जो समझते हैं कि मुआशरे में हमारा मकाम है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको मस्जिद में 5 घंटा 5 मिनट खड़ा होने में तकलीफ होती है, वहाँ 5 घंटा बैठ करके इंतजार करते रहे। भीड़ लग गई, स्कूल जाने वाले लड़के स्कूल छोड़ दिए, मदरसा पढ़ने वाले 4-5 दिन तक मदरसा नहीं गए। ये बेहयाई की जो बीज बोई जा रही है, ये कौन बो रहा है? कोई हिंदू है, कोई दूसरे कौम का है आदमी? ये हम ही लोगों में से लोग हैं जो बुराई को फैलाने में और बेहयाई को फैलाने में और फरोग देने में एड़ी और चोटी का जोर लगा रखा है। आज लोहरदगा की कव्वाली है, कल रात में कव्वाली थी। जिस तरीके से बेहयाई का मुजाहरा किया गया है, जो लोग गए होंगे वो देखे होंगे। नंगा नाच नाचा जा रहा, लेकिन फिर भी हमें होश नहीं आ रहा। औरतों की भीड़ लग रही है, ढोल और ताशे बज रहे हैं, नौजवान आवारा की तरह नाच रहे हैं वहाँ, लेकिन हमें कोई एहसास नहीं। क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह ने हुक्म दिया है अच्छाई का हुक्म दो, बुराई से रोको, नहीं रोकना, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अल्लाह ने यह भी हुक्म दिया है कि वो मुनाफिक होता है, मुनाफिकों की निशानी होती है कि जो अच्छाई का हुक्म ना दे और बुराई से ना रोके, यानी उसका उल्टा अगर वो करता है। मुनाफिकों की निशानियों में ये शुमार है कि वो बुराई को फैलाने में कोशिश करता है और भलाई को रोकने में कोशिश करता है। मस्जिदें वीरान है, क्या फर्क पड़ता है हमें? नमाज के लिए वक्त नहीं है हमारे नौजवानों को, वहाँ 5-5 घंटा खाना पीना छोड़ करके, कारोबार छोड़ करके, और वहाँ खेल और कूद में लगे हुए हैं, तमाशे में लगे हुए हैं। सारी तैयारियां लगाए हुए हैं कि लोहरदगा शाम को जाना है, आज आखिरी दिन है, आज जितना बेहयाई करना हो कर लो।
कौन रोकने वाला है? जिसे रोकने के लिए बनाया गया था वो तो काहिल हो गए, वो तो बुज़दिल हो गए, उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो रोक सकें। और वही लोग जब कराने वाले हो, बुराई को फरोग देने वाले हो, तो रोकेगा कौन? कौन रोकेगा ऐसे हालात में? अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमा रहा है, तुम्हारी ड्यूटी ये है, तुम्हारे ऊपर ज़रूरी ये है कि तुम बुराई से लोगों को रोको और अच्छाई का हुक्म दो। अभी तुर्की में ज़लज़ला आया है, आपको मालूम होगा। क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तान में आ नहीं सकता है? इससे पहले इंडोनेशिया में आया, लाखों लोग मर गए। बताते हैं रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 40 सेकेंड का ये था, 40 सेकेंड का था, और 40,000 से ज़्यादा लोग मर चुके। कौन जानता था कि रात में ये सोने वाले सुबह के वक्त, सहरी के वक्त, तहज्जुद के वक्त ये झटका 40 सेकेंड का अगर 40,000 लोगों को तबाह और बर्बाद कर देगा, अरबों और खरबों के माल को तबाह कर देगा, बिल्डिंगें ज़मींदोज़ हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि अभी यहाँ ज़लज़ला आ सकता है? या क्या हम जानते हैं कि रात में सोए और रात ही में ज़लज़ला आ जाएगा? किसको पता है? क्या तुर्की वालों को ये मालूम था कि ज़लज़ला रात में आने वाला? अगर मालूम होता तो वो घर से बाहर हो करके सोते, रात में तहज्जुद पढ़ के सोते, इशा की नमाज पढ़ के सोते, कुरान की तिलावत करके सोते। लेकिन बेहयाई और बेगैरती का हमारा मुजाहरा ये है कि 40,000 मुसलमान वहाँ पर तबाह हो गए, लाखों और करोड़ों के पैसे वहाँ तबाह हो गए। उन लोगों को खाने की ज़रूरत है, उन लोगों के पीने की ज़रूरत है, उन लोगों के तमाम चीज़ों की ज़रूरियात का मुहैया करना है, लेकिन हमारे अंदर कोई तवज्जो, यहाँ तक कि हमें अफसोस नहीं है। उधर लोग 40,000 मुसलमान तबाह बर्बाद कर दिए गए, यहाँ हमें क्रिकेट का सूझा हुआ है, यहाँ टूर्नामेंट ज़रूरी है, यहाँ तालियों की बौछार हो रही है, यहाँ माइक में गाने बज रहे हैं, और दाढ़ी और लंबे लंबे कुर्ता पहन के मुसलमान कुर्सियों में बैठ के उसका नज़ारा कर रहे हैं। ये है मुसलमान। तबाही की दहलीज पर मुसलमान खड़ा है, और उसके बाद बेहयाई और बेगैरती का मुजाहरा किया जा रहा है। उसके नाम पर कव्वालों को बुला करके लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है। क्या ये पैसे वहाँ भेजा नहीं जा सकता? मुसलमान गुर्बत का शिकार है, मदारिस गुर्बत के शिकार है, मसाजिद में ज़रूरियात बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। ध्यान है तो अपनी अय्याशियों में, अपनी तबाही के दरवाजे खोलने में लगे हुए हैं। सिर्फ हमने कहा था पिछले जुमा को, सिर्फ अपने घर वालों को आप कंट्रोल कर लें, और ये आपके ऊपर वाजिब है, इसलिए कि आप उसको रोक सकते हैं, आप उसके गार्जियन हैं। सिर्फ अपने घर के आदमी अगर देख ले, उसको रोकने की कोशिश करे तो ये बुराई मिट सकती है। लेकिन जो बाप खुद दाढ़ी नहीं रखा हो, वो बेटे को कैसे कहेगा कि तुम दाढ़ी रखो? जो बाप नमाज खुद नहीं पढ़ता हो, अपने बेटे को कैसे कहेगा कि तुम नमाज पढ़ो? जो बाप खुद नमाज नहीं पढ़ता है, अपने घर के औरतों को क्या हुक्म देगा कि तुम नमाज पढ़ो? और हमारे मौलवी हजरात भी कुछ इसमें कम नहीं है, वो भी जाकर के क्रिकेट मैच में शामिल हो जाते हैं। आदमी अपने आप को समझे, मुसलमान का मकाम अल्लाह ने वो मर्तबा दिया है। आलिम अगर अपने आप को ये समझे कि मैं आलिम हूँ, हाफिज अपने आप को समझे कि मैं हाफिज हूँ, कारी अगर अपने आप को ये एहसास करे कि मैं कारी हूँ। आवाम ये नहीं देखती है कि कानून शरीयत में क्या लिखा है, बहार शरीयत में क्या लिखा है, फतावा रज़विया में क्या लिखा है। आदमी ये समझता है कि ये जो मौलवी है, ये जो आलिम है, जिसका रहना सहना उठना बैठना यही दीन है। और इसीलिए कहते हैं कि फला मौलाना भी तो वहाँ बैठ के क्रिकेट देख रहे थे, आप उसको नहीं बोलते हैं। फला कव्वाली में वो मौलाना भी तो थे, आप उसको नहीं बोलते हैं। हम सबको बोलते हैं, यहाँ तक कि हम अपने आप को भी बोलते हैं। मौलवी हो तो मौलवी की तरह रहो, इसलिए कि मौलवी का किरदार लोग समझते हैं कि दीन यही है, और उसी से लोग गुमराह भी होते हैं। वो ये समझते हैं कि ये मौलवियों का मसला अलग होता है, हमारा मसला अलग होता है। ये नमाज पढ़ने का हुक्म देते हैं, लेकिन खुद नमाज नहीं पढ़ते हैं। ये मौलवी हो, चाहे हाफिज हो, चाहे आलिम हो, चाहे इमाम हो, कुछ लोग जो अजान होती रहती है चौराहे पे बैठ करके गप सड़ाके करते हैं। मौलवी लोग 4 लोगों को बैठा करके, उन्हें तौफीक नहीं होती है नमाज पढ़ने के लिए, और ये आवाम को मौका देते हैं बोलने के लिए। और वो आवाम इसी में गुमराह होती है कि जब हश्र इसका जो होगा वही हश्र मेरा होगा। ये नमाज नहीं पढ़ते हैं और वो नमाज पढ़ते हैं। वहाँ पर कहते हैं नमाज पढ़ो, और ये खुद नमाज नहीं पढ़ते। स्टेज पे जब खड़े होंगे तो कहेंगे कि नमाज पढ़ो, और खुद ये नमाज नहीं पढ़ते। इन आलिमों, बदअमल आलिमों और हाफिजों को देख करके लोग गुमराह भी होते हैं और तबाह भी होते हैं।
تو ہم ایسے لوگوں کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، مولوی ہو، تو اپنے آپ کو سمجھو کہ اللہ نے ہمیں جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، کہیں ہمارے ذریعے لوگوں کو ہدایت کے راستے ملے، ہمارے ذریعے سے لوگ گمراہ نہ ہونے پائے، گمراہی کے راستے پر نہ جانے پائے۔ تو ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر، سب کے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اچھائی کا حکم دیں اور لوگوں کو برائی سے روکیں۔ ترکی میں جو ہوا کیا ہندوستان میں نہیں ہو سکتا؟ کیا اپنے موت کو ہر کوئی جان لیا ہے کہ ہم 10 سال کے بعد ہی مریں گے یا 50 سال کے بعد ہی مریں گے؟ ایک سیکنڈ کا معاملہ ہے، ایک سیکنڈ میں اگر اللہ نے اپنے رسی کو کھینچ لیا تو ایک سیکنڈ میں لاکھوں کروڑوں لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے، لیکن ہمیں کوئی فکر ہی نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 50-60 سال نہیں ہو جائے اس تک ہمیں موت نہیں آئے گی، اور جو 50 سال کے ہو گئے ہیں انہیں بھی ابھی امید ہے کہ 100 سال ہم پار کریں گے، لیکن ایک بیگ نکل جاتے ہیں اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بھی سنواریں اور اپنے گھر کو بھی سنواریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو بھی جہنم سے آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس بے حیائی کا جو رواج چل رہا ہے اس پہ قدغن لگانے کی کوشش کرو، اسے روکنے کی کوشش کرو، اور جب تم روکنے کی کوشش کرو گے تب جا کر کے معاملہ صحیح ہوگا۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے؟ وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے پالا تھا اس قوم نے آگوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاج سرے دارا۔ غرض میں کیا کہوں تم سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں بانو جہاں دارو جہاں۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ تمہیں آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تمہیں آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر ہم کو آسمان دے مارا۔ کہاں تھا مسلمان کھڑا، عزت کے کس مقام پر مسلمان تھا کھڑا، اور ذلیل و رسوائی کے کس حد تک گر چکا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھائی کا حکم دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور برائی سے لوگوں کو روکنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔